কোনো সদুত্তর নেই, উনি কিছু বলতে পারেননি, উনি বলেছেন নেক্সট সেশনের আগে আমি এগুলো করে দেবো। আমি বললাম এই সেশন তো দেখতে দেখতে হয়ে গেল, আমরা তো এসছি জুলাই মাসের 22-23 তারিখ, আজকে প্রায় আগস্ট মাসের 12 তারিখ, 20 দিন ধরে তো আপনি কিছুই করলেন না। ওনার কাছে কোনো সদুত্তর নেই। আপনি হয় তাদেরকে এনসিপিআই রেকগনিশন দিয়ে দিন, আপনি রেকগনিশনও দিচ্ছেন না। আপনি রেকগনিশন দিলে তৃণমূল পার্টি বা তৃণমূল কংগ্রেস অফিসিয়ালি এটা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট যেতে পারে। আপনি রেকগনিশন দিচ্ছেন না, আর আপনি আমাদের টাইম থেকে কেটে তাদের বলবার সুযোগ করে দিচ্ছেন। তারা যখন বক্তব্য রাখছে তাদের নামের পিছনে পাশে লেখা আছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। যারা বক্তব্য রেখেছেন এই গ্রুপ থেকে তথাকথিত এনসিপিআই এর এমপিরা, তাদের নামের পাশে লেখা থাকছে এআইটিসি। তারা জোড়া ফুল প্রতীক চিহ্নে নির্বাচিত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সামনে রেখে নির্বাচিত, আর এসে এখন বলছে এনডিএকে সমর্থন করছে। 10 শিডিউল যদি আপনি দেখেন তাহলে ডিসকোয়ালিফিকেশন ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। তো আমরা এটা জুন মাসেও যখন ডিসকোয়ালিফিকেশন পিটিশন ইন্ডিভিজুয়ালি 20টা মুভ করা হয়েছিল তখনও স্পিকারকে বলেছিলাম। আজকে প্রায় 2 মাস হয়ে গেল, কোনো সদুত্তর নেই। আজকেও একই কথা বলেছি, এবং সুপ্রিম কোর্টের একটা অর্ডার আছে যে 3 মাসের মধ্যে স্পিকারকে বিবেচনা করতে হবে। স্পিকার যদি বিবেচনা না করে তখন সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ আমরা দাবি করব। আলোচনায় আসার জন্য বলছেন, উনি দেখো বলেছেন যে एक मिनट मैं इसका बोल देता हूँ फिर आपका हिंदी में बोल बेटा 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। এক হচ্ছে যে বিজেপি আজকে যে দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে, এত সাংসদ ভাঙানোর পরেও, আজকে এত সংখ্যা থাকার পরেও তারা হাউস চালাতে পাচ্ছেন না। যে কথাগুলো দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা লোকসভার অধ্যক্ষ আপনাদের মাধ্যমে সিলেক্টিভলি লিক করছে, সেগুলো হাউসে বলুক না। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তো হাউসে আসতে কেউ বারণ করেনি। আজকে গত 20 দিন ধরে তিনি হাউসে আসছেন না কেন? দেশের প্রধানমন্ত্রী হাউসে আসছেন না কেন? কথা তো এটাই হয়েছিল যে নিটের আলোচনার পর দিল্লির যে ছাত্রদের উপর হামলা এবং আক্রমণ, টিয়ার গ্যাস থেকে পেলেট গান চালানো, সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সেখানে হোম মিনিস্টার ক্ল্যারিফাই করবে। তো আজকে নিটের আলোচনা শেষ হয়েছে প্রায় 10-12 দিন হয়ে গেল, হোম মিনিস্টার কোথায়? যে কথাগুলো সিলেক্টিভলি লিক করছে হাউসে এসে বলুক। अच्छा, आपका जो सवाल, आपका क्या सवाल है? चूंकि होम मिनिस्टर ने कहा है कि आज और कल 2 दिन का वक्त बचा है, हम जवाब होम मिनिस्टर को बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलिए हाउस में आ जाएगा। ये अपोजिशन तय ना करे मुझे क्या बोलना है कैसे बोलना है। नहीं तो यही चीज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो उनको बोलिए हाउस में आके बोल दे। वो हाउस आ ही नहीं रहे। तो आपको भाई क्या लग रहा है भाई पार्लियामेंट वो तो वही बता सकता है, जो नहीं आ रहा है वही बता पाएगा। मैं तो आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजॉरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो, और आप अंदर से घबराए हुए हो, और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है, और उसका जवाब आपके पास नहीं है। उनको इन शब्द से ऐतराज है, लापता है, भाग गए। वो कह रहे हैं संसदीय मर्यादा और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के शब्दों का चलन बढ़ गया है जो ठीक नहीं है। नहीं, लापता क्या गाली है? मुझे तो पता नहीं है लापता क्या है। लापता मतलब मिसिंग है, मिसिंग गाली होता है क्या? रमेश बिदुरी ने जो शब्द यूज किया था होम मिनिस्टर ने कंडेम किया था। भाई दो तरफा तो नहीं हो, आप उनसे पूछो, आप मेरे से जो पूछ रहे हो एएनआई वाले, जरा उनसे भी जाके पूछ लो। रमेश बिदुरी ने जो बोला था उस पर आपका क्या टिप्पणी है? हिम्मत होगा आपका? सर हम तो आज भी किए हैं इंटरव्यू। कहाँ किए? नहीं, इंटरव्यू करने से नहीं होगा, आप पूछ लो रमेश बिदुरी ने क्या बोला था। वो तो शब्द मैं मुंह में नहीं ला सकता, 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। तो पहले उस पर टिप्पणी कर दे, फिर मेरे से पूछ लेना। वो कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर को जो मांग है विपक्ष का वो सौंप दे, आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक वो हर सवाल का जवाब सदन में देने को तैयार हैं। नहीं, वो सौंपने का क्या है, वो तो बोला ही है, आप आ जाओ, कल सुबह 11 बजे हाउस में आ जाओ, चर्चा हो जाएगी। आज 2 बजे हाउस फिर से चालू होगा, आप आ जाओ, चर्चा हो जाएगी। भाई वो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करे। 2 बजे हाउस बैठना है, आ जाए गृह मंत्री, आके वही चीज बोल दे, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी, कौन पीछे हट रहा है। दादा एक और सवाल, आज तमिलनाडु विधानसभा ने एक रेजुलेशन पास किया कि लोकसभा का स्ट्रेंथ 543 ही रहना चाहिए, एक तरीके से डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल है उसे खारिज किया।
बिल्कुल सही किया, मैं सहमत हूँ। डिलिमिटेशन में जब चर्चा होगा तब मैं बोलूँगा। पिछला बार जब चर्चा हुआ था तो बंगाल में चुनाव हुआ था, मैं आ नहीं पाया था, पर इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर इतना जरूर तय है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन लाने का कोशिश किया जा रहा है और जेरी मेंडरिंग के थ्रू हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करके रिकंस्टिट्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे भारत का लोकतंत्र और टूटेगा। तो इसका कोई फायदा लोकतंत्र में नहीं है। तो जो वाजपेयी जी के समय में भी हुआ था कि 543 रहेंगे, वो 25 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया था, हम लोग मानते हैं वही रहना चाहिए स्टेटस को। एफसीआरए पे सर क्या आपकी राय है? विपक्ष कुछ तो कह रहे हैं कि इसे वापस लिया जाए, कुछ कह रहे हैं जेपीसी में भेजा जाए। नहीं, वो अभी तो जेपीसी जाने का ही फैसला होगा, तो जेपीसी में ही भेजेंगे, तो देखते हैं। थैंक यू। और जेपीसी में जाने के बाद तो अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है, तो वापस लेना ही चाहिए भाई। जिस तरीके से आप मतलब एफसीआरए को यूज करके इसको पॉलिटिसाइज करके आप हर 2 साल में एक अमेंडमेंट लाके चीजें करते हो, उसका तो कोई फायदा है। नीट में भी तो वही हुआ, 2 साल पहले जो हुआ था उसी का अमेंडमेंट लाया, अब 1 साल बाद और एक अमेंडमेंट लाएगा, 1.5 साल बाद और एक अमेंडमेंट लाएगा। जब भी कोई क्राइसिस होता है तब कुछ ना कुछ करके ये सरकार प्रयास करता है कि अटेंशन कैसे हटाया जाए, तो ये भी वही एक प्रयास है। टीएमसी डिमांड्स रोल बैक, नो जेपीसी। It can be sent to JPC. However, JPC has no tangible outcome क्योंकि नंबर तो उन्हीं के ज्यादा रहेंगे। तो जेपीसी में ये होता है कि भाई एक मॉनिटरिंग रहता है, एक स्ट्रक्चरिंग रहता है, 2-4 लोग जो विपक्ष के हैं वो अपना सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपने सजेशंस रख सकते हैं, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल डिसाइड सिंस दे हैज द नंबर्स। सो आवर फर्स्ट डिमांड इज रोल बैक, सेकंड इज इफ नॉट पॉसिबल देन इट गोज टू जेपीसी। टीएमसी से गए 3 सांसद जो है, अरे भैया छोड़ दो, मुझे वो नाराज है एनडीए की बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं। बहुत लोग नाराज हैं, बहुत लोग नाराज हैं। आप थोड़ा धीरज रखिए, आगे बहुत कुछ होगा। 3 से ज्यादा है सर। थैंक यू। बढ़िया भाई।